हमारे पार्टी का सम्मेलन हुआ, ऑल इंडिया हुआ अभी केरल में, उससे पहले स्टेट का हुआ। स्टेट की जिम्मेदारी लेने के बाद मैं हर डिस्ट्रिक्ट में जा रहा हूँ और इस बीच आप जानते हैं बंगाल में सिर्फ पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन नहीं, कुछ ना कुछ रोजाना होते जा रहा है। हासकाली, बॉक्टी, रामपुरहाट, दोचापचामी, सीरीज ऑफ रेप्स, देन एसएससी स्टूडेंट्स, पास टीचर्स, उनके ऊपर अटैक्स, हाई कोर्ट एक के बाद एक सीबीआई, करप्शन केसेस इन्वॉल्विंग मिनिस्टर्स पीपल, रूलिंग पार्टी, फिर कम्युनल वायलेंस का माहौल बनाना, चाहे जहांगीरपुरी हो, बुलडोजर गवर्नमेंट। बट उसके साथ साथ मैं हर डिस्ट्रिक्ट में जाने की कोशिश कर रहा हूँ एक एक दिन। तो यस्टरडे आई वाज इन कोच बिहार, बट दार्जिलिंग जिले की जो इनॉर्मिटी ऑफ द प्रॉब्लम, सीरियसनेस ऑफ द इश्यूज, और फिर हिल एंड प्लेन दोनों पार्ट है, तो मैं यहाँ 2 रोज के लिए, एक दिन दार्जिलिंग हिल और एक दिन हमारा नीचे में प्लेन सिलीगुड़ी नक्सलबाड़ी, इसलिए मैं यहाँ आया। तो यहाँ पे हमारा 2 एरिया कमेटी पार्टी का, उसके जो जितने मेंबर्स थे हमारे, उन लोगों के साथ मैं थोड़ा एट होम बातचीत किया आज के इश्यूज के बारे में और हमारे फ्यूचर टास्क के बारे में कुछ जायजा लिया। हमारे पार्टी का सम्मेलन में जो बातचीत हुई उसका कुछ उस बारे में कुछ चर्चा हुई, यहाँ के लोगों की जो परेशानी उसके बारे में कुछ बात हुई। और फिर मैं कमेटी सामान, हमारे नए डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी बने दार्जिलिंग जिले का, तो उन्होंने कहा कमेटी जीवेशदा जो पास डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी कि वंस यू आर देयर इन दार्जिलिंग, तो सिर्फ पार्टी के लोगों से बात करने से नहीं होगा, थोड़ा मीडिया से भी इंटरेक्शन होना चाहिए। तो आपके लिए इट्स अ फ्री फॉर यू, you put your question whatever you want to. I'm here. One by one. You've taken charge of the CPM. So you're reviving also. Given the last election, the agenda change, you're starting to revive it, right? So what are your future plans? Are you trying to induct more youths? What are your plans? There are some reports that 40% of the leadership will be youths. Kijuachi report. Is it true? You can't quantify that. Okay. But the quality-wise, when I took responsibility, I was elected as secretary. The whole process was youth-driven, because our task at the moment is to rejuvenate the party, revamp the organization, reposition it, revitalize the movement. And in that case, the students and youths who were frustrated, particularly what happened in this state for the last 1 decade or more than so, that no employment avenue, there is corruption wherever some recruitment is there, even for some scheme workers posts also are being auctioned. But how do you plan to revive your party? And that's what we discussed and decided. And that's not a press conference. This is not, I can't give you an exhaustive list, but it's indicative. Broadly. It's indicative. If you or your colleagues pay attention to what's happening now, you see the agility of the party, the quick response time on all such issues. Because in this state particularly, utilizing cheat fund, corruption money, and then so-called political bond, electoral bond, corporate money, those who are selling off our national assets, public sectors, and depriving people from their genuine, rights. They did this whole public relation exercise where the rightists, the most reactionary forces, they among themselves divided 2 roles, and a fake opposition was created. Fake opposition, FAKE. In this era of fake news, you have a fake opposition in Bengal. During last assembly election and last parliament election, and particularly in North Bengal, you can see this in particular, how like a gas balloon, hydrogen balloon, BJP was propped up. In the assembly there are main opposition. But when these corruption cases are there, starting from cheat fund, when this rape after rape is happening, law and order situation is there,
when this economy is in doldrum, there is no investment, where people are suffering, when our women folks are suffering, where is the opposition? There is no government, there is no governance. So naturally, the strategy is that on the field, on the streets, the left must be there, and we are there, and we have to be more and more there. We have to unite people. When there is a divisioning tactics is played on the basis of language, religion, caste, sex, gender, people are being divided. At this point of time, we have to unite people. One, to have peace at this moment of disturbances. Security, particularly for our women folk, for young women. Every day, even teenagers are not spared in this state. Secondly, economic condition is very bad, be it the country or state. Be it GDP, be it unemployment rate, be it the question of farmers' income, be it the question of even those who are salaried, but even yourself. Hardly there are journalists who are salaried. You have all contractual. They have changed the whole scenario, paradigm shift. Scheme workers, hire of hire, or just based on your footage or centimeters. So, left has an enormous duty to take up this challenge, and this was through our trade union movement, through our Kisan movement, through our youth movement, through our student movement, women's movement, agricultural laborers movement, small entrepreneurs, and all others, even hawkers, those who are at receiving ends, particularly after this lockdown. The people who depended on tourism, the people who depended on transportation, the people who depended on a small business, the people who were daily wage earners, they are at the receiving end. They can't meet their both ends. So that is why now it's a demand for the left, and we are here to organize. We decided, we discussed, and we are now implementing. PPS के बारे में क्या आज मीटिंग में क्या हुआ? PPS आपके डिस्ट्रिक्ट कमेटी में? What the PPS is? The political solution. No, that is 2P. There are 2P. 2P. All these years we used to listen. PP means 3P, public-private partnership. All these years we have listened for 2 decades, be it the central government or state government. Now we are listening 2P, 1S. That is permanent political solution. Where is the solution? If you talk about solution, it should be something in sight. I don't think the problem, the complexities, overnight it will be solved. No. Even I can't promise. Nobody can deliver. चुनाव के समय आते हैं, बोल सकते हैं डुगडुगी बढ़ा करके हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, अच्छे दिन ले आएंगे, काला धन वापस कर देंगे, नोटबंदी करके हम सब भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, लेकिन वो सब घोषणाएं होती है। हकीकत में तो समस्या का समाधान होना पड़ेगा। तो ये अच्छी बात है कि समाधान, प्रॉब्लम पॉलिटिकल है, सॉल्यूशन भी पॉलिटिकल होना चाहिए और वो परमानेंट होना चाहिए। परमानेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन का पहला शर्त है कि पॉलिटिकल प्रोसेस अनलिस्ट होना चाहिए। डिस्कशन, डिबेट, इन्वॉल्विंग पीपल, लार्जर कम्युनिटीज, स्टेक होल्डर्स। वेयर इज दैट? इवन इन पार्लियामेंट वी डोंट डिस्कस, इवन असेंबली वी डोंट डिस्कस, even all these councils and others is panchayat. You don't have panchayat, जहाँ grassroots level of democracy है. So these days any political process means it should be participatory in nature. हमारे यहाँ वोट के टाइम में गुंडा, बदमाश, रुपया, पैसा, बम, बंदूक, पिस्तौल की बात की जाती है. Where is the participation? So 2P के पहले एक पहला P लगाना पड़ेगा, participatory political process. Participatory political process means parliament is the place. पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। आप बोलो पिछले 7 साल में पार्लियामेंट में कितने बार दार्जिलिंग के प्रॉब्लम लेकर के डिस्कशन हुए, कितने आवर्स, मिनट्स, कितने डेज, कितने रेजोल्यूशंस, कितने बिल्स, प्राइवेट मेंबर ऑफिशियल्स। सो दोस हु आर टॉकिंग अबाउट परमानेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन, आर दे यूटिलाइजिंग पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस फ्रॉम पार्लियामेंट टू जीटीए, यहां के लोकल। हमने पंचायत सिस्टम यहाँ पे जब डीजीएससी हुआ था तो पंचायत सिस्टम के अंदर इसको ले आकर के अलग से यूनिकनेस यहाँ के स्वीकार करके पंचायती राज में यहाँ पे ताकि लोगों को अधिकार मिले, पार्टिसिपेटरी हो कर किए थे। कहाँ गया जीटीए बना? कहाँ गया इलेक्शन? कहाँ गया पार्टिसिपेशन? कहाँ गया इन्वॉल्वमेंट, पीपल्स इन्वॉल्वमेंट? तो पीपल्स इन्वॉल्वमेंट के बगैर नोवेयर इन द वर्ल्ड
पॉलिटिकल प्रोसेस कभी भी नहीं हो सकता। वन, माइनस पीपल नहीं। सेकेंडली, परमानेंट सोल्यूशन का शर्त है ऑटोनॉमी। होल प्रोसेस स्टार्टेड विथ ऑटोनॉमी। आपका जीटीए का ऑटोनॉमी कहाँ है? आपका म्यूनिसिपैलिटी का ऑटोनॉमी कहाँ है? आपका पंचायत का ऑटोनॉमी कहाँ है? आपका स्टेट का ऑटोनॉमी कहाँ है? आपका पार्लियामेंट का ऑटोनॉमी कहाँ है? अभी आपका जुडिशियरी का ऑटोनॉमी कहाँ है? जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम ऑफ थिंग है, आप देखें जुडिशियरी में बोला, जज बोलता है कि हमको इन्फ्लुएंस किया जा रहा है इसी बंगाल में कि मिनिस्टर को बचाने का कोशिश करना पड़ेगा, नहीं तो डिवीजन बेंच से कुछ और हो जाता है। फिर वहां पे गुंडा बदमाश को वकील का ड्रेस पहना करके कोर्ट के अंदर, इजलास के अंदर हंगामा हुआ। तो जुडिशियस तो हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशनली ऑटोनॉमी है, ऑटोनॉमस। कश्मीर इज दैट एग्जाम्पल, अंडर 370 कॉन्स्टिट्यूशनली ऑटोनॉमी था। What happened during this 1920, 2021, 21-22? The example of states' autonomy, not only in India, throughout the world, was Kashmir, Jammu and Kashmir. So those people who are, the Home Minister who is talking about political process, permanent solution, for last 3 decades Kashmir का political solution की बात कर रहे थे हम लोग. But they thought instead of political solution, it should be administrative, it should be military, it should be security forces. वहां तो प्रेस का ऑटोनॉमी है. कश्मीर टाइम्स इज नॉट बीइंग पब्लिश्ड. प्रेस क्लब दखल कर लिया, जर्नलिस्ट लोग को जेल दे दिया, और वो यहां करके बोलेगा हम डेमोक्रेसी एंड ऑटोनॉमी देंगे. वेयर इज द प्रेस फ्रीडम? थर्ड, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, जो अलग अलग स्टेट बना, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम. आज क्या हो रहा है आसाम के साथ? नागालैंड पुलिस का हुआ ना झड़प, फेक एनकाउंटर्स. सो वी आर फॉर ऑटोनॉमी, जेन्युइन ऑटोनॉमी अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम ऑफ थिंग्स. इफ नेसेसरी यू हैव टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन. दिस इज व्हाट वी आर टेलिंग ऑल अलोंग. 6th शेड्यूल को, दार्जिलिंग के यूनिकनेस को दिमाग में रख करके फिट इन करना पड़ेगा, कस्टमाइज करना पड़ेगा, जरूरत पड़ेगा अमेंडमेंट करना पड़ेगा, सो दैट द ऑटोनॉमी कैन बी गिवन. एंड फॉर दैट रीजन इन दार्जिलिंग के डिस्ट्रिक्ट कॉन्फ्रेंस में हमारे यहाँ लोग रेजोल्यूशन लिए हैं. यू नो ऑफ द थिंग्स. विल हैव ब्रॉडर डिस्कशंस विद द स्टेक होल्डर्स, दोज हु आर एक्सपर्ट्स. आई एम अपीलिंग थ्रू यू to the people of Darjeeling. Darjeeling means Darjeeling, Kalimpong, 2 districts, adjacent areas, even all other places where people who value autonomy, who value human rights, who value this ethnicity, linguistic, cultural uniqueness, traditions, उसको लेकर के जो बहुत से लोग हैं, छोटे छोटे ग्रुप्स हैं, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज है, other than BJP and Trinamool Congress, who are destroying of all these autonomous institutions already. I can give you the proof. Name your institution, I will tell you how the autonomy has been finished off. So in that case, इन सब के पास हमारा निवेदन है कि हम चर्चा करें, सजेशंस लें, हम फिर आएंगे, एक्सपर्ट्स कमेटी बैठाएंगे, बात करेंगे, और फिर बेस्ट suitable solution for this Darjeeling, Nepalis, Gorkhalis, जो भी आप बोलो, उनका जो autonomy within the state and within the constitutional framework. So आप 6-0 की back कर रहे हैं? You are backing 6-0? I'm not saying. I am now with open heart. I'm appealing. Or we have some understanding. We are ready to even amend that. Relook that. Amend what? Revisit that. Revisit what? Based on not on the press conference, but through some discussion, No, 6-0. meaningful discussions with the experts, No, but those who matter, relook and including you. revisit 6-0. Relook and revisit 6-0. That's what I say. If 6-0 does not fit in, they have to customize it. Okay. But within the 6-0. There's nothing like it is. In politics, there's nothing like. But generally, broadly, you back 6-0. Generally, broadly. I back autonomy. Okay. Could be in any form. Then how you fit in? Okay. How can you customize it? You can if you contribute. सुनिए ना, यहाँ का डिवोर्स तो सेपरेशन हम बंगाल चाहते हैं. कौन चाहता? आप तो नहीं चाहते. सब लोग चाहते हैं. क्या क्या बोलना चाहेंगे? मैं ऐसा नहीं सुना. सुनिए ना, आज का सभा में जो आपने जो सभा रखे,
इसमें दार्जिलिंग के लिए फ्यूचर प्लान्स के लिए वेलफेयर के लिए आपने क्या सोचा, कुछ प्लानिंग किए इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल एंड चाय बागान के श्रमिक के लिए, क्योंकि इधर की स्थिति बहुत नाजुक है। ठीक, हमने सिर्फ यहाँ नहीं डिस्ट्रिक्ट कॉन्फ्रेंस में बातचीत की, स्टेट कॉन्फ्रेंस में बातचीत की, पार्टी कांग्रेस में बातचीत की। दार्जिलिंग इज यूनिक फॉर फर्स्ट ऑफ कोर्स, जो अपना एथनिसिटी है, लैंग्वेज है, हिस्टोरिक कल्चरल हेरिटेज है, ट्रेडिशंस है, उसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, प्रिजर्व करना पड़ेगा। इट्स नॉट ओनली फॉर दार्जिलिंग, थ्रू द वर्ल्ड, थ्रू द कंट्री, जितने जो स्मॉलर ग्रुप्स हैं, एथनिक ग्रुप्स हैं, लिंग्विस्टिक ग्रुप्स हैं, वो ये जो ग्लोबलाइजेशन की एरा में और ये टेक्नोलॉजी के एडवेंट में वो सब खत्म हो जा रहे हैं। रोजाना कुछ ना कुछ डायलेक्ट खो जा रहा है, कुछ ना कुछ छोटे छोटे लैंग्वेज खो जा रहे हैं। उसको हमें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन चाहिए। हमारे देश में, हमारे का संविधान में लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ का राइट्स है, नॉट ओनली रिलीजियस माइनॉरिटीज़। सो नेपाली स्पीकिंग जो पीपल है उनके राइट्स को हमें रखना पड़ेगा, तो उनको नेशनल लेवल पर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी से कार्ड करना पड़ेगा, बिकॉज नेपाली स्पीकिंग पीपल इज नॉट ओनली इन दिस एरिया बट दे आर थ्रू द कंट्री फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट टू साउथ। एक दो है चाय बगीचा के मजदूर को आपका है, हमारे यहाँ उनका मिनिमम वेज नहीं मिलता। चाय बगीचा जो बंद होता है या जो ठीक चलता नहीं है, लेकिन वहाँ के वर्कर्स को जो फैसिलिटीज, जो वेलफेयर स्कीम्स है या जो चल भी रहा है, मुनाफा भी कर रहा है, वो सब कर्टेल होता जा रहा है। ये नए गवर्नमेंट आने के बाद स्टेट के वो 15% लैंड चाय बगीचा का बोले कि कमर्शियली एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, और कुछ कुछ एक्सप्लॉइट हो भी रहा है, हुआ भी है, लेकिन उसका रिटर्न जो है वो इंटरप्रेटर को, जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उनको मिला, लेकिन इंडस्ट्री को नहीं मिल रहा है। कि इंडस्ट्री को रिवाइव करने के लिए वो प्लॉबैक नहीं हो रहा है, और जो वर्कर्स है, जो टॉयलिंग मासेस है, जो 3, 4, 5, 6 जनरेशन 150 साल से उसको सींचा, उसको वो फायदा नहीं मिल रहा है। आप समझ सकते हो, कल मैं कुछ बिहार में गया, तूफान में घर टूट गया, लेकिन जो बीड़ी वर्कर्स है वो लोग जो मुर्शिदाबाद में ट्रेड यूनियन जहाँ होता है, वहाँ लड़कर के जो मिनिमम वेज है वो भी कुछ बिहार के लोगों को नहीं मिलता है, और यहाँ तृणमूल आके बोला कि सब यूनियन वगैरह नहीं चलेगा। लेकिन आई एम होपफुल, यहाँ पे चाय बगीचा के मजदूर, दार्जिलिंग डूअर्स सब मिला करके एकजुट होकर के, पॉलिटिकल डिफरेंस को अलग करके सब ट्रेड यूनियन मिलकर के लड़ रहे हैं। वहाँ मिनिमम वेज का मामला है, उसका वेलफेयर का मामला है, और उनका जो है ये जो जमीन में जो हक का मामला है, और वो जो पंचायती सिस्टम के अंदर ले आकर के जो स्कीम्स है, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट ज़्यादातर जो स्कीम्स है थ्रू पंचायत से इम्प्लीमेंट होते हैं, वो ताकि उनको मिले, क्योंकि जीटी के जरिए उसको नहीं मिला। ऐसा ही हमारे यहाँ का जो रोजगार का सवाल है, पूरे देश में है, यहाँ भी ज़्यादा है। तो एसएससी में ज़्यादा करप्शन होता है, तो जो कालीघाट के जितने नज़दीक है, मिनिस्टर के जो नज़दीक है, उसको ज़्यादा वो सौदा में कर लिया, तो दूर के लोगों का क्या होगा। तो यहाँ पे कोई ऐसा स्कीम बनाना पड़ेगा कि यहाँ के लोकल जो अनएम्प्लॉयड यूथ है, एजुकेटेड यूथ्स हैं, उसका नौकरी का एवेन्यूज। यहाँ के जो स्कूल्स है तो टीचर नहीं है, टीचर होने वाले हैं तो उसको नौकरी नहीं है। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, वो साइन बोर्ड लगा पहाड़ हंस से, लेकिन पहाड़ हंस नहीं रहा है। सही मानों में उसका जो इंडेक्स ऑफ हैप्पीनेस है उसको बढ़ाना पड़ेगा। उसके लिए हम और भी बातचीत करेंगे। मैं एकदम कोई क्विक सोल्यूशन लेके नहीं आया हूँ। आई एम नॉट अ सेंट्रल मिनिस्टर के आएंगे और वीसी करेंगे। आपके न्यूज़पेपर में लिखा था, जब पहली बार ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर होकर आई थी, तो आनंद विहार पत्रिका में योर हाउस, उसमें लिखा था वीसी, हेडलाइन दिया था, एलेन देख लेन जय कर लेन। वो कुछ आईपैड में फोटो उठा रही थी, ठीक है, वो फोटो भी उठाता निकला था, बट देयर इज नो सच वीसी। We have to get involved people, including you, not only you. So when we talk about solution, I don't interact through media. We have to interact with the stakeholders. But I am open, जो खास करके जो ये सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में हावी हैं, जो अपने पावर को सेंट्रलाइज कर रहे हैं, वो ऑटोनॉमी नहीं देंगे। वो पावर सेंट्रलाइज कर रहे हैं कालीघाट में या नागपुर में, पीएमओ में या सीएमओ में। उस समय हमको जो लोग पीपल राइट्स, ह्यूमन राइट्स एंड ऑटोनॉमी चाहते हैं, ये सब से हम बात करने के लिए तैयार हैं। सलीम, जस्ट क्लैरिफिकेशन जন্য আপনি বলেছেন কি অটোনমি, you need autonomy, you give autonomy to this place, right? What about GTA? You think GTA is not autonomous enough? Your opinion as a party stand on GTA? You know, no, it has to be replaced. GTA has to be replaced. No, বাংলা প্রশ্ন করছে, বাংলাই বলি। হ্যাঁ বলুন, চলুন। If you allow, GTA এক্সপেরিয়েন্স লোকে দেখেছে, অনেক অ্যাডভার্টাইজ করে, পিআর জব করে হয়েছে, কিন্তু কারাপশন, লুট, আর সেই নিয়ে নিজেদের মধ্যে মারামারি এবং দলবদল,
এছাড়া এখানকার মানুষের সমস্যার কি সমাধান হয়েছে? এখানকার অটোনমি মানে তো একটা সংস্থান নয়, অটোনমি দ্য পিপলস, ফর আস ইটস পিপল। তাহলে সেখানে দাঁড়িয়ে ইভেন জিটিএর ইলেকশন পর্যন্ত হয়নি, কনস্টিটিউশনাল গ্যারান্টি নেই, তার কোনো ইটস নট ব্যাকড বাই স্ট্যাচুটরি থিংস। তাহলে যেটা কনস্টিটিউশনাল ব্যাকে ছিল 371 থেকে 371A থেকে 3F পর্যন্ত, আজকে সেটা at স্টেক আছে। আর এখানে একটা মুখ্যমন্ত্রী, একটা প্রধানমন্ত্রীর মুখের কথা, একটা হোম মিনিস্টার মুখের কথার কি দাম আছে? তো সেখানে দাঁড়িয়ে জিটিএ হ্যাজ ফেইড, রিপ্লেস করতে হবে, হ্যাজ ফেইড। সো ইউ হ্যাভ টু রিপ্লেস ইট। আই উড সে রিপ্লেস। হাঁটুতে যখন ব্যথা হয় সবসময় কি আপনি নি রিপ্লেস করেন? তাহলে কি করতে হবে? নি রিপ্লেসমেন্ট ইজ To one upgrade. solution, Then but what extreme should be done? solution. So what Okay, should be done? I don't believe in surgical strike. Those people are there sitting in Delhi who sometime airdrop here, they can give you a surgical strike. But surgical strike is not going to give the solution. But what is the party's stand on GT? Should it be replaced or not? I told. What you haven't said. What is the party's stand I on told. GT? GT has utterly failed. So should it? In the name of GTA, Golkha Territorial Authority. So something new should. Where is autonomy? It's authority. I am against all such authoritarian measures. You replace one authority after another. Within the authority, you replace one person by another person. That's not going to give you a solution. The solution lies in the real authority to the people. That's why I said, you said, you know what I said? I said involvement of the people through grassroots level, not Trinamool. Grassroots level, participatory democracy. I said it adequately. But you're not too clear about GTA. As a body, should I'm it not be going to. replaced? I neither, even if you ask for it 100 times, neither I'm going to promote that brand comprising of 3 letters, nor denounce that 3 letters. There's nothing in that 3 letters. So why you stick to that? So 3 letters GTA. Huh? Okay, thank you. Salim, last question about Delhi rights. Kisi bolen? Huh? About the Delhi rights. Good question. Please. You see, that's the question. The party which came to power showing lotus flower, फूल दिखा करके जनता को फूल किया, विफूल किया, छोटा फूल हो या बड़ा फूल हो। अभी उसका सिंबल बुलडोजर है। बुलडोजर कभी लोगों के अधिकार के लिए नहीं होता है। इट्स नॉट फॉर कंस्ट्रक्शन, इट्स फॉर डिस्ट्रक्शन। वो बोले थे अच्छे दिन लाएंगे, लेकिन 7 साल 8 साल बाद वो अच्छे दिन लाने के बजाय कुछ लोगों के लिए भाषा के नाम पर हो, धर्म के नाम पर हो, जाति के नाम पर हो, वो बुरे दिन ले आ रहे हैं ताकि बाकी लोग समझे चलो भैया हमारा तो बुरा दिन तो नहीं हुआ, तो वो अच्छा दिन भूल गया। हमने ये भी देखा, बार बार हमने ये कहा, आप बोलते हो 0 है, पार्लियामेंट में नहीं है। संसद में अगर कम्युनिस्ट नहीं रहेगा तो सड़क में रहेगा। और जो लोग संसद में थे, चाहे वो सरकार सत्ता पक्ष के हो चाहे विरोध पक्ष के हो, वो फेल किए। तब वो योगीराज से लेकर के शिवराज चौहान से लेकर के कर्नाटक से लेकर के दिल्ली तक ये बुलडोजर राज चल रहा है। स्पेसिफिकली टारगेटिंग और हुम, जो मार्जिनलाइज सेक्शन, जो डेली वेज अर्नर है, जो छोटा मोटा एंटरप्रेन्योर है, जो कबाड़ी का काम करता है, रिसाइकलिंग इंडस्ट्री करता है, सॉफ्ट टारगेट आपने चुना है। और हम कम्युनिस्ट पार्टी, आपने वृद्धाक्रांत को देखा, हमारे इसी स्टेट से वो चुनकर राज्यसभा में गई थी, एक्स एमपी है, पॉलिट ब्यूरो मेंबर है। बुलडोजर के सामने जब हमारे राइट्स को, हमारे लैंग्वेज को, हमारे कल्चर को, हमारे जीविका को, आजीविका को, हमारे जीवन को जब वो बुलडोज करना चाहता है सत्ता, तो सत्ता के सामने, बुलडोजर के सामने खड़े होने का हिम्मत सिर्फ कम्युनिस्ट ही कर सकती है। Any protest you plan on this? Throughout the country it is there. 26th, day after tomorrow in Calcutta it will be there. 28th it will be Delhi. The entire this week, whole country, everywhere, all well-meaning people, not only left, they will join this protest. They are joining this protest because ये तो आगाज है, इसका अंजाम क्या होगा आप समझ लो। आज किसी का घर टूट रहा है देख करके आप खुश नहीं हो सकते। जो डेब्रिज वहां पे आप देख रहे हो बुलडोजर के नीचे, बुलडोजर तो बीजेपी का सिंबल है, लेकिन बुलडोजर के नीचे वो बच्चे का किताब, खिलौना, घर करना का सामान नहीं, वो हमारा देश का संविधान और देश का इतिहास उसके नीचे लग रहा है। उस मलबे के नीचे हमें उस बुलडोजर को हटा करके फिर से इस देश का एकता को बरकरार रखना है।